My sincere greetings to one and all. Welcome to today's EduSet presentation. I am Manju Bhardwaj, lecturer in English working with School Education Department, Haryana. Dear students, our today's topic is letter writing, formal letter part 2. In part 1, we have discussed letter to editor and job application. In part 2, we will discuss application, business letters and letter of complaints. Dear students, as letter writing is a short question in your exam, you must know how to write a perfect letter. It nearly goes around 6 to 8 marks. So, to write effective letter, we must know two things. Number 1, perfect format, and number 2, effective content. So, to know this, let's move to slides. So let's start our today's topic, letter writing part 2. Formal letters we will do. 3 types are left: applications, business letters and letters of complaint. We will do these letters in detail. Applications are the official letters written for asking permissions, concessions and leaves from offices and schools. They must be written in a formal language and can be addressed directly to the heads of departments and schools. So, हम अपनी रिक्वेस्ट प्रेजेंट करने के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं in a very respectful manner and formal language. To score good in application writing, first of all, we must know about format of application and then strictly follow it. फॉर्मेट के लिए आइए देखते हैं. सबसे पहले द प्रिंसिपल, देन नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन. जैसे कि आपके इंस्टीट्यूट का नाम है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 47. देन प्लेस का नेम क्या है? गुरुग्राम. उसके बाद लीव 1 लाइन गैप, एक लाइन छोड़ देंगे आप. फिर डेट लिखेंगे. डेट लिखने के 2 करेक्ट फॉर्मेट है, पहले भी बता चुके हैं. सबसे पहले तो डेट जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वही डेट आएगी. फॉर एग्जाम्पल 27 अक्टूबर 2020, या तो इस फॉर्मेट से लिखेंगे या फिर अक्टूबर 27, 2020. फिर से हम एक लाइन का गैप देंगे. देन कम्स सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में सर और मैडम. देन सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं हम? पर्पस ऑफ राइटिंग एप्लीकेशन, कि हमारे लिखने का पर्पस क्या है, और ये प्रिसाइज होना चाहिए. 3-4 वर्ड्स मैक्स और 1 सेंटेंस. इसके बाद आती है हमारी बॉडी ऑफ द लेटर. इसमें हम वही इंट्रोडक्टरी, मिडल एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखेंगे. देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. योर्स ऑबिडेंटली, सिंसियरली और फेथफुली, इनमें से यूज़ कर सकते हैं. योर्स ऑबिडेंटली स्ट्रिक्टली आप तब यूज़ करेंगे अगर आप एक स्टूडेंट हैं. सिंसियरली अगर आप जिसके लिए लेटर लिख रहे हैं उसे जानते हैं तो आप उस सिंसियरली यूज़ करेंगे. फेथफुली कब यूज़ करेंगे? अगर आप जिसके लिए लेटर लिख रहे हैं उसे नहीं जानते हैं. देन कम्स नेम ऑफ द सेंडर. जिसने एप्लीकेशन लिखी है उसका नेम आएगा. अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वही नेम आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज XYZ कोई नेम आप यूज़ कर सकते हैं. पोजीशन ऑफ द सेंडर अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन की गई है तो वही लिखेंगे, नहीं तो आप कोई भी पोजीशन यूज़ कर सकते हैं. So this is your format of application writing. Now let's move to some tips which you have to keep in mind while writing an application. Write the application in a respectful manner that expresses your request and sounds real. बिल्कुल real लगनी चाहिए. Mention the purpose specifically for which you are writing the letter. Then the application should be concise and true to point. At last, sender's address should not be written in the letter. एप्लीकेशन राइटिंग में
कभी भी सेंडर का एड्रेस नहीं लिखा जाता। तो ये जो टिप्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं। लेट्स डू एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। You are Raman Kumar, a student of class 12th from Government Senior Secondary School, Gurugram. Write a letter to your principal requesting him to grant you full fee concession. Let's see how to attempt it. First of all, the principal. Government Senior Secondary School, Gurugram. तो first line में the principal, then इंस्टीट्यूशन नेम और उसके बाद नेम ऑफ प्लेस। फर्स्ट 3 लाइन में हमने ये लिख दिया। देन लीव 1 लाइन गैप, उसके बाद डेट लिखेंगे। डेट का फॉर्मेट 15 अक्टूबर 2020। इसी फॉर्मेट के साथ आप लिखेंगे या एक और फॉर्मेट जो बताया था अक्टूबर 15, 2020। अगेन लीव 1 लाइन गैप, देन सब्जेक्ट फुल फी कंसेशन। सब्जेक्ट से हमें पता चलना चाहिए कि पर्पस क्या है हमारा एप्लीकेशन का। देन सैल्यूटेशन सर और मैडम। बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन में हम स्टार्ट करते हैं। आई विश टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th B at your school. My father is a poor man and works as a peon in a local factory. आपकी स्कूल में 12th B का मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे जो फादर हैं वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं। He has a large family to support and he is the only source of income for the family. उन्हें काफ़ी सारे मेंबर्स हैं हमारी फैमिली में, उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है और कमाने वाले सिर्फ वही हैं। As a result, it is very difficult for him to meet the expenses of my education. इसी वजह से मेरी एजुकेशन का एक्सपेंस यानी कि खर्चा उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। Since I am one of the top students of the school with great performance in both scholarly and extracurricular activities, I humbly request you to give me a full fee exemption. क्योंकि मैं टॉप स्टूडेंट हूँ दोनों फील्ड में, स्कॉलरली एक्टिविटीज़ में भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी, तो ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी पूरी फीस माफ़ कर दी जाए। इट वुड ग्रेटली हेल्प मी एंड माई फैमिली। ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडेंटली। फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे। योर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य रमन शर्मा, क्लास 12th B। तो इस तरह से हम एप्लीकेशन को फुल फॉर्मेट फॉलो करते हुए लिखेंगे। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। Write an application to the principal of your school requesting him to issue you a character certificate. You are Vipul Nisha of class 12th. यहाँ आपको fictitious नेम दिया गया है, विपुल अगर आप बॉय हो, निशा अगर आप गर्ल हो। Let's see how to attempt this question. The principal, Government Senior Secondary School, गुरुग्राम। यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया है। देन लीव 1 लाइन गैप, राइट डेट 15th October 2020 और इन द फॉर्मेट October 15, 2020। याद रखिए बेटा, जो द प्रिंसिपल हमने लिखा, प्रिंसिपल का पी जो है वो बहुत से बच्चे स्मॉल बना देते हैं। इट्स रॉन्ग, आपको हमेशा प्रिंसिपल का पी कैपिटल लेटर में लिखना है। देन एक और बात ध्यान रखना है, पहले प्रिंसिपल स्कूल गुरुग्राम कोमा लगा दिया जाता था, बट अब हमारा ये जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, हमें एंड में कोमा नहीं लगाने हैं। देन लीव 1 लाइन, देन राइट सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन
सर। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़नी है और हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारे एप्लीकेशन का? रिक्वेस्ट फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद हमारा मेन कंटेंट आ जाता है। कंटेंट में हम लिखेंगे आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट I was a student of your school for the past 5 years from 2015 to 2020 and cleared the senior secondary exam in March 2020 under the roll number 244021 securing first division। फर्स्ट डिवीज़न से मैंने आपके स्कूल से मेरी सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम क्लियर किया इन सेशन 2020। I was an active participant of various curricular and extracurricular activities। इस सेशन के दौरान मैंने सभी एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। I have also won many prizes for my performances। और मैंने अपनी परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारे प्राइजेस भी जीते। I was a member of the school NCC unit and attended 2 annual camp during my time at school। और मैंने 2 कैंप भी अटेंड किए। Now I am applying for an engineering course at a reputed college in Delhi। अब मुझे रेप्यूटेड कॉलेज है दिल्ली में, उसके लिए इंजीनियरिंग कोर्स के लिए अप्लाई करना है। एंड आई नीड अ टेस्टिमोनियल ऑफ कैरेक्टर एंड अदर एबिलिटीज़। काइंडली इशू मी अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट सो दैट आई कैन अप्लाई विदाउट अ प्रॉब्लम। कृपया मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करने का कष्ट करें ताकि मैं किसी प्रॉब्लम के बिना ही वहाँ अप्लाई कर सकूँ। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। योर्स ऑबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य विपुल कुमार। तो देखा आपने कितना इजी था एप्लीकेशन लिखना। इसी तरह से बिफोर हैंड, यानी कि ये नहीं कि एग्ज़ाम के टाइम ही हम बना कर लिख लेंगे। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो पहले ही प्रिपेयर करना होगा, इन एडवांस आपको प्रिपेयर करके रखना होगा। ये स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि भाई हम जो प्रिपेयर करते हैं वो नहीं आता, कुछ और एग्ज़ाम में आ जाएगा। बट फिर भी हम बिगिनिंग एंड एंडिंग कुछ फिक्स लाइंस हैं जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं एंड विद इन टाइम लिमिट हम अपना आंसर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस लेटर्स। दीज आर फॉर्म ऑफ फॉर्मल लेटर्स that are written for business transactions। Many companies require to write these letters to offer their services to the government and large companies। When companies order goods in bulk, the order is sent through a business letter। Individuals write these letters to order goods which they cannot find near them। तो बल्क में जब सामान को ऑर्डर करना होता है तो बिज़नेस लेटर के थ्रू किया जाता है। नियर बाय जब हमें सामान नहीं मिलता तब भी हम बिज़नेस लेटर का यूज़ करके ऑर्डर करते हैं उस सामान को। While ordering goods online is a trend that has become prevalent in recent years। आजकल इसका प्रचलन बहुत है कि ऑनलाइन हम ऑर्डर करते हैं सामान को। बिजनेस लेटर्स आर स्टिल यूज्ड फॉर एनी बिजनेस डीलिंग मेड बाय अ कंपनी। कंपनीज बिजनेस डीलिंग्स के लिए बिजनेस लेटर्स का ही यूज करती है। लेट्स डिस्कस अ सैम्पल क्वेश्चन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस लेटर्स। राइट अ लेटर टू लाइट वे स्पोर्ट्स आम्रपाली थाने placing an order for sports articles, minimum 4 articles to be supplied to your school, ABC Matriculation School, Civil Lines, Pune। Sign as Ravi Ravina, Sports Secretary। तो देखिए क्वेश्चन से आपको एड्रेस मिल जाता है, एड्रेस के बाद पर्पस भी मिल जाता है, किस चीज़ के लिए हम लिख रहे हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद आपको नेम भी दिया गया है, यू आर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, डेजिग्नेशन आपकी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी की है। और अगर आप गर्ल हैं तो रवीना यूज़ करेंगे और बॉय हैं तो आपका नाम रवि है। तो आपको आंसर अटेम्प्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। MVM स्कूल, सेक्टर 7, गुरुग्राम। देन लीव वन लाइन, सबसे पहले एड्रेस लिख दिया, उसके बाद एक लाइन का गैप देंगे। देन राइट डेट, डेट जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उसी दिन की आएगी। सपोज 8 अक्टूबर 2020। देन अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन गैप। उसके बाद हमें जो एड्रेस दिया गया है क्वेश्चन में वही लिखेंगे। किसका एड्रेस आएगा? जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। यूनिवर्सल स्पोर्ट्स 63, ग्रेटर कैलाश, न्यू दिल्ली। तो ये हमारा एड्रेस था जो प्रोवाइडेड था क्वेश्चन में, वहीं से हमने ये लिख लिया। देन लीव वन लाइन अगेन। उसके बाद हम लिखेंगे सैल्यूटेशंस। सैल्यूटेशन में डियर सर और डियर मैडम। अगर हमें पता नहीं है तो हम डियर सर लिख सकते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या शो करेगा कि पर्पस ऑफ राइटिंग, किस पर्पस से हम लेटर लिख रहे हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फॉर द स्कूल, हमें ऑर्डर करना है किस चीज़ का? स्कूल के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का ऑर्डर करना है, तो वही हमारा सब्जेक्ट हो गया। नाउ कम्स द बॉडी ऑफ लेटर। अब बॉडी ऑफ लेटर में मैंने आपको बताया मेनली 3 पैराग्राफ्स में हम लिखते हैं। हमने पिछले लेटर में भी ये समझा था। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मिडल जिसमें आप डिस्कस करेंगे, सजेशन देंगे, एंड जो एंडिंग आपका पैराग्राफ होगा वो होगा कंक्लूडिंग पैराग्राफ। उसमें फीडबैक एंड योर सजेशंस विल बी इंक्लूडेड। तो स्टार्ट करते हैं। एज द स्पोर्ट्स डे ऑफ द स्कूल इज बीइंग हेल्ड नेक्स्ट मंथ, वी वांट यू टू सप्लाई द फॉलोइंग स्पोर्ट्स आर्टिकल्स एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट मंथ हमारा स्पोर्ट्स, as the sports day of the school is being held next month, we want you to supply the following sports articles as soon as possible। क्योंकि हमारे स्कूल का स्पोर्ट्स डे होने वाला है तो हमें ये जो बताई गई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है वो चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, so that the students can participate for the various sports tournaments, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर पाएँ। Enclosed within a list of sports equipment needed by the school. Please send the goods to the school on any weekday between 8 AM and 2 PM। साथ में हमने एक लिस्ट दी है जिसमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मंगवाए गए हैं। किसी भी वीकडे पर 8 से 2 बजे तक आप इसे भेज दीजिए। यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सेंड द बिल आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट परमिसेबल फॉर स्कूल्स। स्कूल्स के लिए जो डिस्काउंट दिया गया है उसको इंक्लूड करने के बाद जो बिल बनता है वो भी आप इसके साथ भेज दीजिए। वी विल सेंड द पेमेंट आफ्टर द कंसाइनमेंट इज रिसीव्ड एंड चेक्ड बाय द गेम्स डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल। जैसे ही हमारा गेम्स डिपार्टमेंट गुड्स को चेक कर लेगा तो हम आपको पेमेंट कर देंगे। फर्दर प्लीज़ एंश्योर द क्वालिटी ऑफ कंसाइनमेंट। आपसे रिक्वेस्ट है कि कंसाइनमेंट जो हमने मंगवाई है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इफ़ डिफेक्ट्स आर फाउंड इन द गुड्स, द होल कंसाइनमेंट विल बी रिटर्न विदाउट एनी पेमेंट। अगर कोई डिफेक्ट मिला तो हम पूरी की पूरी कंसाइनमेंट वापस कर देंगे। थैंकिंग यू। इसके बाद आपको फिर से एक लाइन का गैप देना है एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की बारी आती है। आप क्या लिखेंगे? योर्स फेथफुली। नेम जो आपको दिया गया है रवि। हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ आइटम्स। लिस्ट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? आइटम, ब्रांड एंड क्वांटिटी। तो
तो कौन कौन से आइटम्स मंगवाने हैं वो लिखेंगे, और उसके बाद उसका ब्रांड और कितना क्वांटिटी में आपको वो मंगवाना है। जैसे यहाँ पर फुटबॉल्स कौन सी कंपनी की है, निव्या, एंड ये क्वांटिटी है 5 आइटम्स। देन क्रिकेट बॉल्स SVG 8 नंबर्स। देन बैटिंग ग्लव्स SVG कंपनी के, वो भी आपको 8 मंगवाने हैं। लिस्ट आपकी छोटी बड़ी आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कितने भी अगर उसमें मेंशन नहीं की गई है तो अपने अकॉर्डिंग आप लिस्ट बना सकते हैं। इसमें उसके अलावा टेनिस बॉल्स भी मंगवाई है, हॉकी स्टिक्स भी मंगवाई है। तो ये नंबर्स आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं अगर कोई और आ जाता है हमारा, सपोज़ ऑर्डरिंग ऑफ बुक्स आ जाता है, ऑर्डरिंग ऑफ क्रॉकरीज आ जाता है, तो उसमें इसी तरह से जो लिस्ट है वो बनेगी। किस तरह से, आइटम, देन ब्रांड, देन क्वांटिटी, और इस तरह से लिस्ट बनाकर आप एनक्लोज्ड हेयर विद है तो आप उसके बाद यूअर्स फेथफुली और नेम के बाद भी बना सकते हैं। और अगर आप एनक्लोज्ड वर्ड यूज़ नहीं करते तो आप उसको लेटर में ही मेंशन कर देंगे। Let's see one more example. Now let's see our last type of formal letter, complaint letter. It is a type of formal letter where the writer expresses his complaints about the system in place. इस टाइप के लेटर में क्या किया जाता है, कंप्लेंट्स जो होती है हमारी वो प्लेस की जाती है। इट फोकसेस ऑन कंप्लेंट्स टू गवर्नमेंट ऑफिसेज, डिपार्टमेंट्स, बैंक्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। कंप्लेंट लेटर हम गवर्नमेंट ऑफिसेज में, डिपार्टमेंट्स में, बैंक्स जो हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है सभी में इसी टाइप के कंप्लेंट लेटर लिखे जाते हैं। कंप्लेंट्स टू बिजनेसेस आर आल्सो मेड इन दिस मैनर। अब जो हम लेटर देखेंगे, लेटर ऑफ कंप्लेंट, बिजनेसेस में भी जो कंप्लेंट करते हैं वो इसी मैनर में लिखे जाते हैं। Here are some tips of writing a letter of complaint. Write the letter in a polite manner. सबसे पहले तो हमें जो कंप्लेंट करनी है, जो लेटर लिख रहे हैं, उसका जो मैनर है राइटिंग का वो पोलाइट होना चाहिए। वी शुड नॉट बी इन अ एंगर मोड। नेवर फॉरगेट टू मेंशन द डेट ऑफ द लेटर। लेटर में जो कंप्लेंट कर रहे हैं उसकी डेट मेंशन करना ना भूलें, बिकॉज इट्स अ प्रूफ। देन प्रेजेंट द लेटर इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। लेटर को हमेशा प्रॉपर फॉर्मेट में ही लिखें। फॉर्मेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पार्ट 1 and 2 also. Introduce yourself and write the purpose of the letter in the first paragraph. Body of letter जो हमने पहले भी बताया था आपको कि 3 पैराग्राफ्स होता है, तो जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसमें क्या लिखना है हमें, पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। Write a brief overview of your complaint without including useless information in the second paragraph. सेकेंड पैराग्राफ में हमें क्या देना है, कंप्लेंट का ओवरव्यू देना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। देन कंक्लूड द लेटर बाय राइटिंग द सॉल्यूशन फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। और जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है हमें पॉसिबल सॉल्यूशन उसका बताना है जो हमारी प्रॉब्लम है सॉल्व हो सके। लेट्स सी वन एग्जाम्पल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। Write a letter to the superintendent of police of your district complaining about poor patrolling by the police in your area. एक लेटर लिखना है आपको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो एरिया है वहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, रिजल्टिंग इन पैटी क्राइम्स, जिसकी वजह से क्राइम बढ़ रहे हैं। साइन योर सेल्फ एज ABC। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमारा क्वेश्चन था। आइए अब देखते हैं इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। बहुत ही इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे बाय फॉलोइंग करेक्ट फॉर्मेट। क्वेश्चन से ही हमें काफ़ी जो है पार्ट मिल जाता है, जिससे कि आपको वो जो पार्ट के मार्क्स तो मिलते ही मिलते हैं। 16 रेलवे रोड कुरुक्षेत्र। सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना था, जो लेटर लिख रहा है सेंडर्स एड्रेस, तो ये क्या है 16 रेलवे रोड कुरुक्षेत्र। देन लीव 1 लाइन, फिर हम डेट लिखेंगे। डेट वही लिखेंगे जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं, 10th अक्टूबर 2020।
आप वो डेट लिखेंगे जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फिर से हम एक लाइन का गैप देंगे। देन रिसीवर्स, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस, किसको लिख रहे हैं? द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, कुरुक्षेत्र। देन लीव वन लाइन गैप अगेन। देन कम्स सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम लिखेंगे सर, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट भी आपका साफ साफ क्वेश्चन से मिल गया है, क्राइम्स ड्यू टू पुअर पुलिस पेट्रोलिंग। क्वेश्चन में बताया गया था ना कि प्रॉपर पुलिस पेट्रोलिंग नहीं हो रही है जिसकी वजह से क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट भी हमारा कहाँ से मिल गया? हमें क्वेश्चन से। ये अलग अलग हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, कंप्लेंट अबाउट न्यूजेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स इन सैनिटरी कंडीशंस, या फिर इंक्रीज इन रेट ऑफ क्राइम्स, डिफेक्टिव आइटम्स। तो जो भी क्वेश्चन में आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारा सब्जेक्ट है क्राइम्स ड्यू टू पुअर पुलिस पेट्रोलिंग। अब बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे 3 पैराग्राफ्स होते हैं, इंट्रोडक्टरी, मिडल एंड कंक्लूडिंग। फर्स्ट पैराग्राफ में हम प्रॉब्लम बताएंगे। इट पेन्स मी टू ब्रिंग टू योर नोटिस द पुअर पेट्रोलिंग बाय द पुलिस इन दिस एरिया। It seems that there is nobody to check whether the police in the area is doing their job honestly or not। यानी कि हमें बताते हुए दुख हो रहा है कि जो एरिया की पुलिस है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। It is seen that only a couple of policemen are present in the area during the early hours of the night। कि नाइट जब शुरू होती है तो बिगिनिंग के जो आवर्स है उसमें कुछ पुलिसमैन होते हैं वहाँ पर। दे मूव अराउंड कैरिंग देयर स्टिक्स एंड हरास एंड एक्सटोर्ट मनी फ्रॉम द लेबरर्स दैट आर गोइंग बैक होम आफ्टर अ हार्ड डे ऑफ वर्क। वो क्या करते हैं, अपने स्टिक्स लेकर घूमते हैं और जो लेबरर्स लौट रहे होते अपना हार्ड वर्क करके पूरा दिन, वो जब वापस अपने घर के लिए जा रहे हैं उनसे पैसा लेते हैं। दिस सो कॉल्ड पेट्रोलिंग पार्ट डिसअपियर्स आफ्टर 10 PM। और ये जो पेट्रोलिंग करने के लिए होता है हमारा टाइम, उसके बाद 10 बजे के बाद वो लोग चले जाते हैं। सिंस देयर इज़ नो नाइट वॉचमैन इन दिस एरिया, द थीव्स एंड बर्गलर्स हैव फ्रीडम टू स्टील फ्रॉम द पीपल। थीव्स को आज़ादी मिल जाती है कि वो लोगों की घर चोरी कर सके। हार्डली अ डे गोज़ बाय विदाउट अ केस ऑफ थेफ्ट। मुश्किल से एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब चोरी नहीं होती। Thus, it is a humble request to put honest policemen on patrol duty in the area। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ईमानदार पुलिसमैन को हमारे एरिया में ड्यूटी पर लगा दीजिए। देन लीव 2 लाइन गैप, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखेंगे योर्स फेथफुली। साइन योर सेल्फ एज ABC, तो हम क्या लिखेंगे? ABC। तो ये था आपका लेटर ऑफ कंप्लेंट। सो वी हैव completed today application writing, business letters and letters of complaints. Here are some things to remember regarding these. Business letters are written for more than one function. They can be used for placing orders, offering services, sending the reviews and complaints for the products. Complaint letter is an official letter written to government departments. As such, they are filed with when the complaints are addressed. While complaint letters format is same as other formal letters, the difference comes with the body of the letter. यानी कि कंप्लेंट लेटर वैसे तो सेम है लेकिन बॉडी में ही जो डिफरेंस है वो नोटिस किया जा सकता है दूसरे लेटर्स के कंपैरिजन में। इट इज़ ऑलवेज एड्रेस्ड टू अ हायर अथॉरिटी एंड पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट्स। दस इट लैक्स एनीथिंग बियॉन्ड फैक्ट्स। इसीलिए फैक्ट्स के अलावा इसमें हम कुछ और नहीं डाल सकते। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको फॉर्मल लेटर बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। अब आपके लिए होम असाइनमेंट है। देयर आर 2 क्वेश्चंस जो कि आपको अपनी ग्रामर नोटबुक में लिखने हैं और अपने इंग्लिश टीचर से चेक करवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
You are Apurva Ashima, librarian of Gitanjali Public School, New Delhi. Write a letter to sales manager of Bharat Publishers Limited, Chandigarh, placing an order for the books for your school library. अपनी स्कूल लाइब्रेरी के लिए आपको बुक्स का ऑर्डर करना है. In second letter, write a letter to the SHO of your locality reporting the theft of your bike. You are Neeraj and Nisha, living at 108 Sector 6, Gurugram. इस लेटर में आपको अपने लोकेलिटी के SHO को रिपोर्ट करनी है अबाउट द थेफ्ट ऑफ योर बाइक. आपकी जो बाइक चोरी हो गई है उसकी रिपोर्ट आप लिखवा रहे हैं. Dear students, I hope you enjoyed our today's lesson and understood the concept well. Thanks for watching. See you again in the next lesson. Till then, keep learning and stay safe.